Hello and welcome to CVR English. I am Jyoti. Let's get into the updates. Local women and girls of a village in Himachal Pradesh tied Rakhi to Indo-Tibetan Border Police ITBP personnel on the occasion of Raksha Bandhan. Posters and hoardings of India Alliance leaders put up along the streets in Mumbai ahead of the opposition bloc's scheduled meeting today and tomorrow. Arvind Dharmapuri, BJP MP, says round the clock PM Modi thinks about the poor people now. Prices of gas cylinders have been reduced. A few months back, the taxes on fuel prices were reduced. The two twice, so the state Telangana government blaming PM is utter rubbish. Advised K. Kavita to reduce state taxes on fuel. Around the clock, 24/7, he only thinks about poor Indians. He has a very strong team which gives him input from various sectors of the society. Today, the reduction of gas cylinder, prices on gas cylinder. Few months back, reduction on the taxes on the fuel prices. That too not once, twice, so on, so forth. So the local government here, the family government, blaming Modi, calling it names and all, this is utter rubbish, and I advise Ms. Kavita to reduce taxes, state taxes on fuel. You are collecting highest price in India on petrol and diesel. If you can further reduce something on gas, think on those lines instead of doing rotten politics. You have lost election by a huge margin, and this time again if you contest, which I am sure she wouldn't dare to contest, if she does, she would stand third. Modi. Visible Emission Line Coronagraph VELC is one of the main payloads on the ISRO Aditya L1 mission, said Nilesh Desai, Director, Space Application Center, Ahmedabad. All in all, there are 7 payloads, which includes one main payload called VELC, Visible Emission Line Coronagraph. Another unique point is that these payloads have been prepared not only by Indian Institute of Astrophysics, which has made main payload, but also other smaller institutes have also been roped in to deliver the 6 other payloads. This is the uniqueness of this particular mission, Desai said.
नाम दिया गया है आदित्य L1। करने के लिए, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उसका विज्ञान समझने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है और किया जा रहा है सॉरी। और जैसा कि आपको भी पता लग ही गया है कि 2 सितंबर को लगभग 11:50 पे सुबह उसको प्रक्षेपित किया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लॉन्च पैड के ऊपर श्रीहरिकोटा में ये लॉन्च व्हीकल हमारा रेडी है, PSLV लॉन्च व्हीकल C-57, और उसके ऊपर ये आदित्य L1 को इंटीग्रेट कर दिया गया है। और मिशन के बारे में पूरा जो ऑथराइजेशन है, अप्रूवल है, वो कल शाम तक हम दे देंगे। तो उसके बाद ये मिशन की उल्टी गिनती जिसको बोलते हैं काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया 2 सितंबर को सुबह 11:50 पे उसका लॉन्चिंग शुरू हो जाएगा। तो ये है आदित्य L1 मिशन, जिसका मुख्य उद्देश्य जैसे मैंने बताया सूर्य का स्टडी करना है, सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। और इसमें कुल मिला के 7 पेलोड लगे गए हैं। और इस बार इसरो खुद ही सब कुछ बनाने के बदले इस बार हमने इन्वॉल्व किया है अन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, तो वो लोग अपने पेलोड दे रहे हैं उसमें। तो एक मुख्य पेलोड है, उसमें हमने मैक्सिमम इसरो ने ध्यान दिया है, जो इसरो की सहयोग से बना है। और बाकी 6 पेलोड अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं। तो वो 7 पेलोड मिलके सूर्य का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। और जो मुख्य पेलोड है उसको वेलसी कहा जाता है, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, और उसका जो ऑप्टिक्स है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। और उसके बाद का मुख्य ढांचा है, मुख्य सिस्टम है, मुख्य प्रणाली है, वो डिटेक्टर से लेके उसका। Farmers in Mandya staged a protest late at night as the Kaveri Water Regulation Committee passed an interim order asking Karnataka to release 5,000 cusecs of water to Tamil Nadu daily for the next 15 days till September 2. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಯಾರು ನಮ್ದು ಬಂತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಂತು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಲಾಯರು ಅಪ್ರೂವ್ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ತಿನ್ನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಗಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿವಾದ ಆಗಿ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ನಾವೇನಾದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ 10,000 ಕೊಡಕ್ ಆದೇಶ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ರೈತರಿಗೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಅದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಅವರೇ, IAS ಮಾಡಿದಿರಿ, ಸಿ ಮಾಡಿದಿರಿ, ನೀವು ಲೀಗಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ, ಕನ್ನಡ ಓದಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 10,000 ಕೊಡ ಸಾಲ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾವು 10,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಪ್ಪೀಲು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ನೀರು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ನೀರು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತನೆಗಳಿಲ್ಲ. One person named Bilal Ghani alias Mallu, 18 years old, has been arrested in connection with the Bhajanpura murder case. The accused was apprehended near Signature Bridge at about 2 a.m. on 29th August. The arrested accused along with his 4 other associates were involved in a road rage with the deceased and the injured person, Joy Antrique, DCP, Northeast.
On the India Alliance meeting to be held in Mumbai, Congress leader Milan Deora says the objective of the India Alliance is to make the constitution of India stronger. We don't want to differentiate between people on the basis of caste, gender or region. I believe that the meeting in Mumbai will be historical. इंडिया जो गठबंधन है, इस गठबंधन को इसलिए बनाया गया है कि हम देश के संविधान को अधिक मजबूत करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि भारत का संविधान सर्वोप्रिय है। यदि भारत का संविधान मजबूत रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा। और हमारा मानना है कि जब तक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नागरिकों का जो भेदभाव है वो नहीं मिटता है, या धर्म या जाति के आधार पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास नागरिकों को क्लासिफाई किया जाता है, जब तक सभी को समान रूप से मूल मानव अधिकारों की गारंटी नहीं है, तब तक हमारे देश में, हमारे समाज में असंतोष बना रहेगा। उस असंतोष हटाने के लिए इस अलायंस आने वाले दिनों में, महीनों में और खास करके 2024 के चुनाव तक साथ में मिलकर हम काम करेंगे। मुंबई में जो मीटिंग हो रही है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है और मुझे पूरा यकीन है कि मुंबई की जो मीटिंग है इंडिया अलायंस के लिए, भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, भारत की जनता और खास करके जरूरतमंद जनता को न्याय दिलवाने के लिए एक ऐतिहासिक मीटिंग होगा। थैंक यू। थैंक यू। Union Minister Arjun Munda on India Alliance says this group India Alliance is putting their energy to think about how to destabilize the country. देखिए, ऐसा है INDA, ये अपने आप में इन लोगों का जैसे कहा जाए कि कोई ऐसा अस्तित्व दिखता नहीं है जैसे हम ये कहें कि एक यूनाइटेड तरीके से कोई बात हो रही है। ये एक तरीके से ये कहा जाए कि एक ऐसी जमात जो देश को स्टेबलाइज नहीं, डी स्टेबलाइज कैसे किया जाए उसी पर ज्यादा उसी पर एनर्जी लगा रहे हैं। हर दल सोच रहा है कि उसकी पार्टी के चेहरा हो, कन्वीनर उसकी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी का अलग डिमांड है। अब देखिए, इसमें आपको स्वयं दिख रहा है कि क्या स्थिति है, लेकिन देश आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ाना है, देशवासियों को आगे बढ़ाना है, सर ये लक्ष्य है हमारा। सर, डुमरी उपचुनाव में ओवैसी के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़ो हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि चौकीदार नहीं चाहिए और मोहम्मद की दुकान नहीं। सर, तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं कि एक तीसरा मोर्चा होना चाहिए और यहाँ तक कि उन्होंने उसमें केसीआर को कहा है लीड करने के लिए। सर, तीसरे इस मोर्चे की स्कोप है? देखिए, अब यहाँ तो मोर्चे ही मोर्चे लोग बात करते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में सब पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगे। Congress leader Sanjay Nirupam on India Alliance meeting to be held in Mumbai. When our first meeting was held in Patna, we were not aware of the details and what will be the name of the alliance. There were 16 parties there in Patna. In the Bengaluru meeting, the number increased to 26 and now we have 28 parties. Slowly, all the parties with BJP will come under this India Alliance umbrella, he says. अब आगे हैं और उनको भी समझ में आ रहा है। इस घबराहट से कल वो फैसला लिया गया, पता नहीं आगे और क्या क्या फैसला लिया जाएगा। आपने पूछा मुंबई अलग कैसे है, बिल्कुल मुंबई से तो बड़ी बड़ी क्रांतियां निकली हैं। महाराष्ट्र तो क्रांतियों का सृजक है। सर, आप कह रहे हैं कि ये घबराहट से ये डिसीजन लिया गया है, वहीं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये जो अलायंस है ये बनावटी अलायंस है और ये कुछ कमाल की बात है। उनका इंडिया नेचुरल और हमारा अलायंस बनावटी का अलायंस हो जाएगा, ये क्या बात है भाई 1977 में भी तो ऐसा अलायंस बना था और तब उसमें लेफ्टिस्ट भी थे, जनसंघ भी था जो बीजेपी का पहले का अवतार है,
उसमें कांग्रेस के खिलाफ की सारी पार्टियां थी। तो आज भी बिल्कुल उसी तरह की असामान्य परिस्थिति है, जिसकी वजह से अलग अलग विचारों से जुड़ी पार्टियां जो कि जन सामान्य के मुद्दों से सरोकार रखती हैं, वो सारी पार्टियां एक साथ जमा हुई। जी सर, वही हम बात करें 25 से 26 पार्टियां हैं जो इस मीटिंग में रहेंगी। 28 होंगी। 28 अब 2 और जुड़ गई हैं। सर वही हम बात करें कन्वेनर कौन होगा, एक फ्रंट फेस भी होना चाहिए। बिल्कुल होगा, आप इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब पटना में जब हमारा अलायंस हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी, तब इसका नाम क्या होगा, कौन कौन लोग होंगे, कुछ पता नहीं था। पटना में तो 16 पार्टियां थी, उसके बाद बेंगलोर जाते जाते 26 हो गई, यहां आते आते 28 हो गई। बेंगलोर में हमने अपने संगठन का नाम तय किया। जब नाम तय किया तो पूरे बीजेपी में कोहराम मच गया और इंडिया को बदनाम करते करते वो हमको ये आतंकवादी तक कह दिए। अब तो हम घमंडिया भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये घबराहट है, ये परेशानी है बीजेपी के अंदर। सर मेरा आखिरी सवाल है, वहीं पे मायावती की पार्टी और क्या अकाली दल भी आप लोगों के टच में है? बिल्कुल होंगे, ये मेरे टच में तो नहीं है, मैं कह सकता, मैं दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जितने भी लोग बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, जो भी बीजेपी के काम काज से त्रस्त हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के आश्रय में आएंगे। इंडिया का आकार बहुत बड़ा है और यहाँ सबको ठंडक मिलती है। थैंक यू सो मच। Chief Election Commissioner Rajiv Kumar on poll preparedness for Mizoram Assembly election says we are putting a lot of emphasis on transgender and everybody have been asked to register. There is a process of empowerment that is taking place through our platform. Do this kind of a review and then based on the variety of factors like holidays, as you said, not elections on Saturday, Sunday, somebody may not have that kind of a so variety of factors will announce, but whenever we announce, only the press will know first, nobody else will know, in Delhi of course. So this is first part. You said about the influx of displaced persons. So there are specific, the Mizoram government is very alive to that situation. There are some IDPs whose number is in the range of around 12,000 and the section 27 of the Representation of the People Act has very elaborate provisions for as to, I am talking about the election related point on the IPDs, rest is with the state government to kind of take care of them. So the ordinary resident of a place is what is the definition under that section, on the basis of which the electoral roll is finalized. So each DO in whichever localities they are, in 1 or 2 districts essentially, the DOs take that call under the section 20(7) of the Representation of People Acts based on the ordinary residents and depending on the will of the people where they want to remain as the electors. Similarly about Myanmar you asked. So there are close to again 30,000 persons who are here. There are detailed instructions which Commission has given on mapping of the vulnerability and that is in play, that has been explained to the district officials. They have identified also including these areas something close to 33 vulnerable areas in this, but the assessment is as far as the voting is concerned, we are more on the electoral integrity part of it. Whosoever is a voter must be allowed to vote and nobody who is not a voter should not be allowed to vote. That is what the district electoral officers will ensure within the law. Then vulnerability I have also already mentioned to you. You asked about the transgender. I forgot to mention that. We are putting, see, this is the beauty. India Alliance's Mumbai meeting says the third meeting will be held in Mumbai. We will discuss our roadmap for the future and how we will reach out to the people.
बैठक पटना में हुई थी। एक साथ में आने का, एक कुनबा बनाने का एक विचार था और उस फैसले पर मोहर लगी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, जिस बैठक में इस अलायंस का क्या स्वरूप होगा इसका नामकरण किया गया और उस अलायंस का नाम इंडिया दिया गया। तीसरी बैठक मुंबई में की जा रही है, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी, यहीं होगी जहां हम खड़े हैं, इसी होटल में होगी। और इस बैठक से आगे का क्या हमारी यात्रा रहेगी, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो लेके लोगों के बीच जाना होगा, उन मुद्दों को ले जाने का क्या जरिया रहेगा। पब्लिक मीटिंग्स होंगी कि लोगों का दरवाजा खटखटाएंगे, कैसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और एक मसौदा तैयार करने का प्रयास करेंगे। इस देश को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पे आ रही समस्याओं, उनसे कैसे निजात दिलानी है, इस पर एक मसौदा बनाकर, एक ब्लूप्रिंट बनाकर देश को आगे तरक्की की राह पर कैसे ले जाना है, वो उस पर चर्चा होगी। कोई भी पार्टी हो या कोई अलायंस हो, उसका एक फेस होना बहुत जरूरी होता है। कन्वेनर कहा जा रहा था कि कन्वेनर भी अनाउंस होगा, क्या अरविंद केजरीवाल भी इस रनिंग लिस्ट में हैं? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, आज सुबह से ही कई प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। मैं ऑफिशियली और कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूं, अधिकृत तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है। इंडिया अलायंस को ज्वाइन करने का जो फैसला आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है, वो इंडिया अलायंस का एक लॉयल सोल्जर होने के नाते, एक सेनानी होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते हम इस अलायंस में आए हैं और इस अलायंस को आगे बढ़ाकर कैसे ये अलायंस देश से बेरोजगारी, महंगाई जैसी समस्याओं से निजात दिलाए, उस पर काम करेंगे, देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। हम कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी चीज, कन्वीनर, नो कन्वीनर, एजेंडा क्या होगा, कौन सी समिति बनेगी, उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, ये सारी चीजें तो बैठक में तय होंगी। आज उस पर बात करना बेमानी होगा। बैठक के बाद 1 तारीख को शाम को तमाम नेतागण, आप सभी पत्रकार साथियों से विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो उस मीटिंग के अंदर हुआ है उसके बारे में आपको बताएंगे। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और भी जो रीजनल पार्टीज है वो भी एड ऑन होने वाली है इस मीटिंग में। अकाली दल का भी नाम चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ना ही कोई ना। Samajwadi Party leader Shivapal Singhi earlier today on India Alliance's leader phase said the opposition parties have several leaders and they will find their face. पार्टी के लिए बहुत अच्छा है और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सुधाकर सिंह रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई है, शिवपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी ताकत झोंके हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को, क्योंकि अभी ये बाई इलेक्शन है? देखिए, बाई इलेक्शन है और समाजवादी पार्टी का माहौल बहुत अच्छा है और सभी वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है। पिछड़े, दलित और सवर्ण और अल्पसंख्यक मुसलमान में सबका वोट मिल रहा है। जिस तरह से लेकर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बयान की बड़ा निंदा की जा रही, चारों तरफ हिंदू धर्म पर उन्होंने टिप्पणी की है। उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को देश से अब हटा देगा। कल भी मीटिंग होनी है INDIA की, तो किस तरह से देख रहे हैं और जो उनका उसको लीड कौन करेगा, अगला नेता कौन होगा आपकी नजर में? अब उसकी चिंता मत करो, नेता हैं उसमें और सब लोग कर लेंगे, उसकी आप लोग चिंता मत करो। लेकिन जिस तरह से बहुत नेता राज्यों में आवाज उठाई जा रही है कि कोई नीतीश को कह रहा है, कोई किसी को, ममता बनर्जी को, क्या आपको लगता है अखिलेश यादव का भी नाम चल रहा है? देखिए, इसकी चिंता आप लोग मत करो, वो लोग चुन लेंगे और इतने नेता हैं वहाँ पर और इतने सीनियर और इतने मतलब देखिए नेता हैं, उसमें एक नेता नहीं है और वो सब लोग मिलकर के चुन लेंगे
अच्छा, जिस तरह से जल्दी इलेक्शन लोकसभा का कराने की बात चल रही है, ममता जी ने भी कहा है और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कहा है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं अगर जल्दी चुनाव हो जाता है लोकसभा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से ग्राफ गिरा हुआ है और दिनों दिन गिरता जाएगा, इसलिए कि इन्होंने 9 साल में देश की जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। केवल मीडिया में प्रचार और अच्छा काम कोई अगर किया है तो आप ही लोग बता दो। Shiv Sena UBT leader Anil Desai early today on India Alliance's meeting in Mumbai said the national agenda and how we opposition parties will move forward will be discussed on September 1. आज तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई उद्धव जी की और शरद पवार साहब की, और काफी मुद्दे उन्होंने बात रखी। अब जो मीटिंग होगी उसमें 1 तारीख की मीटिंग अहम रहेगी और उसके पहले उद्धव जी की तरफ से सभी डेलीगेट्स जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, अलग अलग पार्टियों से, नेशनल यहाँ पे इंडिया अलायंस के लिए, उनके लिए रात के भोजन की, डिनर की व्यवस्था है। और उससे पहले एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी जहाँ पे कुछ मुद्दे, बातें हो सकती है और जो नेशनल एजेंडा है या किस तरह से आगे चलना है, पब्लिक रैलीज करनी है, कन्वीनर हो या कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, इन सब बातों पे सीनियर लेवल पे जो बातें हो रही हैं वो 1 तारीख को उसके ऊपर गंभीरता से चर्चा होकर लोगों के सामने आ जाएगी। आपको, मीडिया को भी उसी वक्त पता चलेगा। अब बीजेपी भी अपने हिसाब से निकल के अब एनडीए करके जोर लगा रही है, गठबंधन और करने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये उनका मसला है। यहाँ पे इंडिया अलायंस की जो बात है, इंडिया अलायंस की बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए रहेगा। और वो सत्ता में हैं, वो लोग, कल तक बीजेपी थी, आज एनडीए के बारे में सोच रहे हैं। एनडीए के जो गठबंधन के उनके जो पार्टनर्स थे उनको ढूंढ रहे हैं, उनको लेके आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। देश के लोगों Thank you for watching CVR News English with me, Jyoti.